Hello everyone, this is Professor Rita Baude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for the video series of linear integrated circuits having a subject code 22423. And today I'm going to discuss about chapter 3, linear applications of operational amplifier. And today's topic of discussion is 3.11, that is the comparators. The course outcome for this course as troubleshoot various applications of op-amp for the given specification. Whatever the specification you are having, you will be able to troubleshoot that particular applications of op-amp by studying this course. This chart shows the CO and PO mapping. Here CO3 getting mapped with the PO1, 2, 3, 4, 6 and 7 at a particular level. ये कैसे मैप होते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है. The learning outcomes for this course. After the completion of this topic, students will be able to, it means you will be able to डिफाइन अ कंपैरेटर. सबसे पहले आप लोगों को पता चलेगा कि कंपैरेटर क्या होता है. देन यू विल बी एबल टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ इन्वर्टिंग एंड द नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर. हाउ यू आइडेंटिफाई दैट इज इट इज अ इन्वर्टिंग कंपैरेटर एंड दिस इज अ नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर, ये भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो आफ्टर द कंप्लीशन. After that, you can be able to state the different applications of comparator. If someone asks what are the different applications of comparator, you will be able to answer them after the completion of this topic. In the last lecture, we were studied about क्या पढ़ा था अपन ने, concept of log amplifier and anti-log amplifier with derivations. आप लोगों को log amplifier क्या होता है, anti-log amplifier क्या होता है, ये भी अपन ने देखा था. उसके बाद में by the using of log amplifier and anti-log amplifier multiplier क्या है और divider क्या है, ये भी आप लोगों ने last lecture में पढ़ा था. So for today, let's start with the comparator. Now, before going for the comparator, you must have to know what is a comparator. अभी तक जितने भी एप्लीकेशंस आपने पढ़े थे, दैट ऑल द एप्लीकेशंस आर द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, राइट? ऑल द एप्लीकेशंस आर क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, बट द कंपैरेटर्स आर द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन. देखो, इट इज एन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप-एम्प. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इन द स्टार्ट ऑफ द दिस सब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. वन इज द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद में ओपन लूप के कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे. उसके बाद में ओपन लूप इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग में कैसे वर्क करते थे वो भी पढ़े थे. उसके साथ साथ एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का भी पार्ट अपन ने उसमें पढ़ा था. एंड देन अपन ने क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट किया था. देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन जिसको अपन ने अभी तक के पढ़ा है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन. नाउ ये तो समझ में आ गया आप लोगों को कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या है. तो अभी इसका नाम ही कंपैरेटर्स है, तो इट इज कंपेयरिंग द वोल्टेज, राइट? सो इट कंपेयर्स अ सिग्नल वोल्टेज. व्हाट इट इज डूइंग? It compares a signal voltage on one input terminal with the known voltage which is called as a reference voltage on another input terminal. मतलब आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है, इफ यू आर गिविंग अ इनपुट वोल्टेज टू वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ ऑप-एम्प, देन द सेकेंड टर्मिनल इट इज कंसिडरिंग एज अ नोन वोल्टेज विच इज नथिंग बट योर रेफरेंस वोल्टेज, जो कि आप लोगों ने अनदर टर्मिनल ऑफ ऑप-एम्प को दिया है. बराबर है? देन दिस इज नथिंग बट अबाउट द कंपेयर. कंपेरेटर्स आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इट इज यूजिंग फॉर द कंपेयरिंग करना है. उसके बाद में the output may be positive or a negative saturation voltage depending on the input voltage. Output कुछ भी हो सकता है. It may be a positive saturation or it may be a negative saturation which is totally depending on the input voltage. देखो यहाँ पे डायग्राम दिया है. as it is a open loop configuration, the op-amp should be shown like this. Here this is a basic diagram of op-amp which consists of the two terminal. One is the inverting and the second one is a non-inverting terminal, along with the two power supply, positive power supply and the negative supply. And there is a, by using two inputs, it will give the single output. It is a basic diagram of
operational amplifier, which is nothing but the using as a comparator. So let's start with the बेसिक इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। अभी आप लोगों को देखना है कि इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर क्या होता है। तो डायग्राम को देखते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों को इन्वर्टिंग कंपैरेटर दिखाई देगा, विच मतलब इन्वर्टिंग है तो आप लोगों का इनपुट किसको जाएगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल को। और जैसे कि आप लोगों ने इन्वर्टिंग बोला है तो अनदर टर्मिनल विल बी ग्राउंड। सो तो यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा दैट वोल्टेज इट इज नोन एज द वी रेफरेंस, मतलब उसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस वोल्टेज, जो कि ऑलवेज जीरो रहेगा एट द अनदर टर्मिनल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज नथिंग बट योर इन्वर्टिंग कंपैरेटर। अभी कंपैरेटर का मीनिंग क्या है या फिर कैसे डिसाइड करेंगे, इफ द पॉजिटिव टर्मिनल इज ग्रेटर, अगर ये टर्मिनल ग्रेटर है एज कंपेयर टू निगेटिव टर्मिनल, एज कंपेयर टू निगेटिव टर्मिनल, तो आप लोगों का जो वोल्टेज है वो कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव सैचुरेशन में। और इफ द निगेटिव टर्मिनल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू पॉजिटिव टर्मिनल, देन योर वोल्टेज इज गोइंग टू इनटू निगेटिव सैचुरेशन। इज दैट क्लियर? दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट, आप लोगों को ध्यान में रखना है। If the positive terminal is greater as compared to negative terminal, then it is going towards the positive saturation. And if the negative terminal is greater as compared to positive terminal, then it is going to the negative saturation. It means अगर आप लोगों ने inverting terminal लिया तो it is going towards the निगेटिव सैचुरेशन, और अगर आप लोगों ने नॉन इन्वर्टिंग लिया तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव सैचुरेशन। सो दिस इज अ डायग्राम। देखो यहाँ पे वी रेफरेंस जीरो, दैट इज द निगेटिव टर्मिनल के पास जो भी वोल्टेज है दैट इज जीरो, और यहाँ पे आप लोगों ने इनपुट सिग्नल दिया किसको, पॉजिटिव टर्मिनल को, दैट इज नथिंग बट योर नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। देखो दिस इज अ इन्वर्टिंग कंपैरेटर एंड दिस इज अ नॉन इन्वर्टिंग। दिस आर द बेसिक डायग्राम्स फॉर द इन्वर्टिंग एंड द नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। अभी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसके वेव फॉर्म्स कैसे होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, व्हेन वी आर यूजिंग रेफरेंस वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज अगर आप लोगों का रेफरेंस वोल्टेज से ग्रेटर है, यहाँ पे देखो आप लोगों ने जब रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव मतलब आप लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड रखा है और इनपुट दिया है इन्वर्टिंग टर्मिनल को, तो आप लोगों का सैचुरेशन हमेशा कहाँ से होगा, निगेटिव सैचुरेशन। बराबर है, निगेटिव सैचुरेशन यहाँ पे आ रहा है, तो आप लोगों का यहाँ से शुरू होगा जो भी है, तो वो पॉजिटिव सैचुरेशन। वी रेफरेंस अगर ग्रेटर है, वी रेफरेंस मतलब क्या है, अगर आप लोगों का इनपुट वोल्टेज ग्रेटर है एज कंपेयर टू रेफरेंस वोल्टेज, मतलब इनपुट वोल्टेज अगर आप लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल को दिया है तो आप लोगों का इक्वेशन किस में जाएगा, आप लोगों का पॉजिटिव सैचुरेशन में। तो देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव सैचुरेशन दिखाई दे रहा है, और अब वही अगर आप लोग का वी रेफरेंस निगेटिव है, मतलब आप लोगों ने इनपुट सिग्नल आपके ग्रेटर है और जो कि आप लोगों ने किसको दिए, इन्वर्टिंग टर्मिनल को, तो ये जाएगा कहाँ पे, निगेटिव सैचुरेशन में। तो these are the waveforms for the non-inverting comparator and these are the waveforms for the inverting comparator. ध्यान में रखना है, यहाँ से देखो सबसे पहले कि कंपैरेटर है, जैसे जैसे आप लोगों ने यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज दिया है, जीरो लेवल पे यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज है, तो आप लोगों का यहाँ से इनपुट वोल्टेज जो है वो राइज हो रहा है, बराबर है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोगों का इनपुट वोल्टेज यहाँ से इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू रेफरेंस वोल्टेज, तो यहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव सैचुरेशन आएगा। और वही अगर आप लोगों को निगेटिव रेफरेंस है, मतलब यहाँ पे आप लोगों का इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो आप लोगों का जो है वो बिलो जाते जाएगा, तो आप लोगों का यहाँ पे निगेटिव सैचुरेशन आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव एंड द निगेटिव टर्मिनल and positive saturation and the negative saturation, which is related to the non-inverting comparator and the inverting comparator. Now what are the transfer characteristics of comparator? transfer characteristics क्या है comparator के, तो यहाँ पे देखो these are the transfer characteristics of comparator. These transfer characteristics of comparator are related to non-inverting and the inverting comparator. तो यहाँ पे देखो जो भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं that is for the inverting comparator, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं that is for the non-inverting comparator. These are the characteristics for the inverting comparator and these are the characteristics of the non-inverting comparator. तो देखो जब भी आप लोग मतलब यहाँ पे लास्ट डायग्राम में भी एक चीज देख सकते थे कि इन्वर्टिंग कंपैरेटर में आपका इनपुट वोल्टेज जो है
वो compared with the ground voltage, and when the input voltage crosses the inverting or non-inverting voltage, the output of the op amp goes to negative saturation. मतलब इनपुट इन्वर्टिंग कंपैरेटर में आप लोगों का नेगेटिव सैचुरेशन में जाएगा और इन द नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर इट इज फॉर द पॉजिटिव सैचुरेशन. तो दिस आर द ऑल अबाउट द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपैरेटर. एंड लास्ट इसमें जो देखा था दैट आर द बेसिक वेवफॉर्म्स ऑफ द इन्वर्टिंग एंड द नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर. तो एक चीज ध्यान में रखना है, कंपैरेटर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जब भी आप लोग इनपुट कौन से इसको देते हो और अनदर कौन सा टर्मिनल आपका रेफरेंस वोल्टेज है, और जैसे कि अगर अपन ने इन्वर्टिंग कंपैरेटर दिया है तो आप लोगों का इनपुट वोल्टेज जो है वो हमेशा ग्रेटर रहना चाहिए एज कंपेयर टू रेफरेंस वोल्टेज. अभी इनपुट वोल्टेज आपने कौन से टर्मिनल को दिया है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. उस हिसाब से आप लोगों के वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करने हैं कि वो कब पॉजिटिव सैचुरेशन में जाने वाला है और कब निगेटिव सैचुरेशन में जाने वाला है. Then what are the applications of comparator? कौन से applications है comparator के? देखो अपन इन सब को पढ़ने वाले आगे जाके. तो फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज द जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, स्मिथ ट्रिगर, उसके बाद में विंडो डिटेक्टर, phase detector, active peak detector and the peak to peak detector. These all are the applications of comparator and these all are nothing but the open loop configuration, जिसमें आप लोगों को सैचुरेशन, पॉजिटिव सैचुरेशन, निगेटिव सैचुरेशन में मतलब इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग को पढ़ना है. उसके हिसाब से आप लोगों के वेवफॉर्म्स भी जनरेट होने वाले. और कंपैरेटर का एक चीज ध्यान में रखना है, कंपैरेटर इट इज ऑलवेज यूज्ड टू कन्वर्जन ऑफ साइन वेव इनटू स्क्वायर. एक चीज ध्यान में रखना है, कंपैरेटर आर ऑलवेज यूज्ड टू कन्वर्ट द साइन वेव इनटू square wave. These all are the applications of comparator. So this lecture summarizes as क्या पढ़ा अपन ने. First of all we have studied here basics of comparator. comparator क्या होता है ये पढ़ा. उसके बाद में inverting and non inverting comparators, उसके waveforms भी मैंने आप लोगों को बताए. और what are the applications of comparator ये भी आप लोगों को यहाँ पे मैंने पढ़ा है. So thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture we will study about zero crossing detector. Thank you.